موجود ہے. ہاللیلویا. رات کو میں میسج کے لیے بیٹھا تو پوری تیاری کے میسج میں نے دینا ہے اور خدا نے تھاٹ دے دیا اور میں حیران تھا. صبح جب اٹھے تو دعا کی میں روشنی میں اس دعا میں ایک دعا یہ تھی کہ خدا نے اس سال گولیاں تو جان چھڑا دیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شارون نے جو دعا کی ہے یہ پروفیٹک تھی. شارون کو تو نہیں پتا تھا، نہ پتا تھا کہ شارون نے آج ہمیں بلانا ہے یا دعا کرانی ہے. دوسری بات جو ایک لفظ بار بار صبح سے آ رہا تھا بلکہ رات سے تھا وہ تھا ایکسلریشن. ایکسلریشن کیا ہے؟ اسپیڈ اپ. اردو میں کہتے ہیں اسراء. چھیتی چھیتی کم. دوجے گیری گڈی تے کیڑے گیری پا دینی ہے جی چوتھے گیری جی پنجواں تے پنجویں. یہ دو باتیں میں دیکھ رہا تھا. اور پھر تیسری بات جو کی گئی جو لازر والی بات تھی. آج میرا میسج یہ تو یہ نہ شارون کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے. ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور وہ جو خاص لائنیں پاکرو نے مجھے دی تھیں جو بولنی تھیں اس کلام کا حصہ تھیں. آج مزے کی گل ہے ڈائری بھی کوئی نہیں تھی. آج ڈائریکٹ ہی کام ہے. آج ڈائریکٹ ہی کرنٹ لگن گیا. سو وہ سیم وہی الفاظ. سو گلوری ہم اسی کو دیں گے. آمین آمین آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آج مہینے کا آخری دن ہے. 4 مہینے گزر چکے ہیں اور اب ہم کون سے مہینے میں قدم رکھنے لگے ہیں؟ مئی. اور یہ 5واں مہینہ ہے اور 5 کا عدد فضل کا عدد. اور آنے والے مہینے میں 2 مسیحی ایمان کی بڑی عیدیں. میں بھی ان کو بڑی عیدیں کہتا ہوں. ایک عید سعود ہے مسیح کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور دوسرا 28 مئی عید پینتیکوست. پاورفلی قوت کا لباس. ہاللیلویا. سو آپ ریڈی ہیں مئی میں داخل ہونے کے لیے؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. اب اپریل کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تینوں ٹائم کھانا دیتا انہیں، گھر کا کرایہ دیتا، بجلی کے بل دیتے، گیس کا بل دیتا، آٹا آیا. ہاں جی سارے کام ہوئے. کمی کوئی نہیں ہوئی. کیوں کمی نہیں ہوئی؟ کیونکہ خداوند میرا چوپان، مجھے کمی نہ ہوگی. ہاللیلویا. آئیں چوپان کے لیے بھرپور تالی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو آئے ہم دیکھتے ہیں پہلا تھسلونیکیوں، پھر ہم جائیں گے یوحنا کی انجیل میں 5واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. جی میرا نادہ دعا کر. جی ہر ایک بات کی شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. پہلی بات کیا لکھی ہے؟ ہر وقت مشکل کام. آپ ہر وقت خوش نہیں رہ سکتے. جا رہے وقت آپ مسکراتے رہے، خوش نہ لوگ کہنے کرے پاگل ہے. آپ کے چہرے پہ سمائل ہے کر رہا ہے، مسکرا رہے ہیں، جان کے کر رہے ہیں. ہر وقت کیا رہو؟ خوش رہو. اب ہماری خوشی کی وجہ
कभी भी कि कोई मौका आ गया तो खुश होना। अच्छा, आज बर्थडे, आज शादी की सालगिरह, खुश, बादशाह खिल रही है। जे कोई बीमारी आ गई ना आ गई, हमारी जो खुशी हमारे अंदर खुदा ने रखी है, उसकी कोई वजह की वजह से नहीं कि वजह है। हाँ जी, कोई हैपनिंग्स हैं, लव है ना, हैप्पी आर दोज, मुबारक है वो, है जी। सो हमारी जो हैप्पी लफ्ज हैप से है। हेलो, हैपनिंग, कुछ हैपन हो तो फिर हम हैप्पी हो। हमारी खुशी की वजह ये बर्थडे पार्टियां, ये सालगिरहें, ये बॉन्ड निकल आया, ये हो गया, वो हो गया। हालात जैसे भी, हर वक्त का मतलब है हर तरह के हालात में, और मैं यूनानी का आपको बता रहा हूं, हर तरह की हालत में, हालात जैसे भी हो, क्या रहना जी? खुश रहना। ये खुशी आपके जो अंदर का है, इनर जॉय, बातनी खुशी, और ये खुशी इंसानी ताकत से नहीं है। ये खुशी पाक रूह का फल है। हालेलुया। जब पाक रूह अंदर है तो फिर क्या है जी? फिर आप खुश हैं। हालेलुया। तो हर वक्त क्या रहो? खुश रहो। हालेलुया। फिर दूसरी बात, बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग। नो नागा, नो ट्यूसडे, नो वेडनेसडे, कोई मंगल पूजा, जैसे पाकिस्तान में नागा होता है गोश्त का, दुआ में कोई नागा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कितनी दुआ करती हैं, कितनी नहीं करनी, लेकिन आपने बिला नागा खुदा से रफाकत रखनी है। आपका जिससे ताल्लुक होगा ना, आप उससे दिल में जरूर बात करेंगे। दसो मैंने सही गल करना कि नहीं करने? दसो है हम चेहरे पे स्माइल आए, जिससे आपका ताल्लुक होगा, और कि ओदा मैसेज सारा दिन ना आए, ओए होए होए होए, कहां थे सारा दिन? मैं मोबाइल हाथ में पकड़ के, पता मैं एक हाथ से आटा भी गूंद रही, इक्को हाथ ना लाके मैं सारा काम, इक्को हाथ, मेरे हाथ, दूसरे हाथ में क्या था? आपके मैसेज का वेट। और देखिए मेरा कितना वेट कम हो गया। जिससे ताल्लुक होगा उससे आप जरूर बात करें, मौका ढूंढेंगे बात करने का। वॉशरूम की जाके करना, समझ गए? हाय, आज तलानियां पकड़ेंगे। तीसरी बात, हर एक बात में क्या करो? हर एक बात में, यहां पर कोई नहीं लिख दिया गया ये बात होगी तो फिर प्राइज बॉन्ड, ये नो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि आप हर एक बात में, यूनानी में है हर तरह के हालात में और हर तरह की हालत में, आपने क्या करनी है? शुक्र गुजारी करनी है। हालेलुया। हालात ठीक है, शुक्र गुजारी। हालात नेगेटिव है, शुक्र गुजारी। बीमारी है, शुक्र गुजारी। शिफा है, शुक्र गुजारी। कुछ है, शुक्र गुजारी। कुछ नहीं है, शुक्र गुजारी। कुछ भी नहीं है। हबक्कूक क्या कहता है?
कुछ भी ना हो मुझे तू चाहिए, कलवरी से बहता हुआ प्यार चाहिए। हालेलुया। कुछ भी ना हो, जानवर सब कुछ कहता जाया भी हो जाए। हबक्कूक तीसरा बाब जरा निकाले, और ढूंढियो ना किथे है मुश्किल काम है, मैंने मिलता क्यों जी मिल गया। हालेलुया। तीसरा बाब, हालेलुया। 17वीं आयत, अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें, तबेलों में मवेशी ना हो, तो भी हालेलुया मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निगात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावन खुदा मेरी तवानाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते जैतून भी ना होवे, बनी इस्राएल की सारी लाइफ जैतून पर डिपेंड करती थी। जैतून नहीं है ते घर विच हनेरा है, चिराग। जैतून नहीं है तो जख्मा ते नाल भी कुछ नहीं है, बाइबली ऑयल। जैतून नहीं है तो हैकल में रोशनी। जैतून नहीं है तो खाना पकाना कैसे होगा, आप समझ रहे हैं। जैतून का ना होना, मवेशियों का ना होना, भेड़ों का ना होना, भेड़ नहीं होगी, मवेशी नहीं होगी, दूध नहीं होगा, ऊन नहीं होगी, सर्दी कैसा गुजारा होगा, खाएं पिएंगे कैसे, सब कुछ कह रहा चला गया है, कुछ भी ना हो। कहना फिर भी किए मैं खुश रहूंगा। कहना जाया भी हो गया ना सब कुछ, एंड टाइम पे होने लगा था जाया भी हो गया। कहता कोई बात नहीं, ये सारा काम मेरी तवानाई पे डिपेंड नहीं करता, खुदा मेरी तवानाई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहना जदों पैसा पूसा आ जाए ना, इस 8वें बाब में खुदा कहना जदों कुछ आ जाए ना, तो ऐ नहीं कहना, पढ़ लो कि मैं अपनी ताकत ना पैसा कमाया है, मैं सुबह उठता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। खुदा कहना कभी भी पुत्र क्रेडिट अपने आप को ना दे, तेनू ताकत मैं देना वा उठण दी। याद है जदों कभी सानू तुहानू चुक निकल आनी, ते उदों फिर पता चलता 6 फुट 6.5 फुट जवान का इंज हो जाता। इसे कभी भी खुदा की जमीन पर फखर जरूर आकड़ नहीं, हलीमी फिरोतनी, क्योंकि खुदा खुद भी हलीम है। पता आपको आपका खुदा हलीम है, वो हलीम है ना, उसने अपने बारे में खुद कहा मैं हलीम और दिल का फिरोतन हूं तो तुम्हारी जाने। ये मुझे समझ नहीं आ रही, हलीम होवे ते जाना मेरिया नाम पाएंगे। इसका मतलब आपकी हलीमी दूसरों को इत्मीनान, सुकून, आराम देती है, तो आटी आकड़ दूजियां दा पट्ठा गोल कर। पता लोग इरिटेट होते हैं। सो कुछ भी ना हो। हालेलुया। सो हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। आए आप जरा यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालें, यूहन्ना का इंजील बयान 11वां बाब, जो खुदा ऑलरेडी मुझसे बात कर चुका है और खुदा ऑलरेडी आपसे भी बात कर चुका है, हल्की फुल्की सी। वो मेरे वाले से भी थी, वो आपके वाले से भी थी। 11वां बाब, ये आए जरा इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ आपने रहना, मैं इसको पढ़ता हूं ताकि हम साथ साथ देखते भी चले जाएं। 11वां बाब,
मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उससे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। क्योंकि यीशु मसीह जब बैतनिया में आता था ना, तो कहां पे रहता था? स्टे कहां पे होता था? लाजर के घर। अब इसमें एक मरियम है, उसने क्या किया? यीशु मसीह की खिदमत कैसी की है जी मेहरबानी? इत्र डाल के तेने का टावल आज इस्तेमाल नहीं होएगा, उसने अपने बालों को टावल बना लिया है। हालेलुया। जरा अंदाजा कर लो उदे बालों की लंबाई क्या जीनत है। बाइबल कहते हैं जीनत है, औरत के बाल इसकी क्या जीनत है। वो आप जरा थोड़ा सा इमेजिन करें, आप अभी अगर हम प्रैक्टिस करना चाहे हम कर नहीं सकते। एक शख्स को मैं यहां पर बैठाऊं और एक किसी बहन को बुलाऊं जिसके बाल लंबे, और मैं कहूं कि इसके पांव आपको डिस्प्ले करने के लिए, तो वो कैसे लेटेगी, कैसे अपना सर फिर तो जमीन पे लगाएगी, फिर अपने बाल आगे लाएगी, और वो फिर कैसे करेगी सारा कुछ। बहुत बड़ी बात है। प्रेस्टीज का लेवल देखिए। उन्हें क्या, मेरी इज्जत मेरी जीनत सब कुछ यीशु के दर है। जब हम यीशु को जान जाते हैं ना, फिर दूसरी परवाह नहीं करते। वो साड़ी इबादत सच्चे खब्बे वेखते गुजरनी जाती है ना, कि आज शरोन की करन दिया है, ते आज है वजन की करन देना। वो वर्शिप जो है ना, वो सच्चे खब्बे नहीं देखती, और वर्शिप वाले को इस वजह ये नहीं परवाह नहीं होती कि वो करन दिया कि नहीं करन दिया। उसे कहना कि मैंने अपना बेस्ट देना है। हालेलुया। आप खुदा को अपना बेस्ट देने के लिए आए, क्योंकि उसने बेस्ट दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अगली स्टोरी पता की है? यीशु को पैगाम क्या है? अच्छा, वो तो ना मोबाइल ना लेटर ना कुछ, पता नहीं कौन पैगाम देने गया होगा, वो कब से चला होगा, यीशु को ढूंढा होगा, क्योंकि वो तो जीपीएस नहीं सुने कि यीशु मिल जाए कितने है। यीशु ने वो क्या यीशु अपनी लोकेशन पे, आजकल तो काम ही सारे आसान है ना। लिखा है कि जिससे तू अजीज रखता है वो बीमार है। जो यीशु को अजीज है, मैं और आप बीमार हो सकते हैं, मैं बीमार हो सकता हूँ। अब यीशु देखिए डील कैसे करता है मुझे और आपको, सिचुएशन को ना देखिए। यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। अब ये जलाल जाहिर करने के लिए मैं रात को जब इसको देख रहा था, सोच रहा था, तो मेरे अंदर ही चीजें टाइप होना शुरू हो गई थी। मैं सोच रहा था मिलना जलाल यीशु में कि लाजर तक जो पैगाम पहुंचा होना कि ए जलाल मिलने लगा है, तो कहना इसका मतलब मैंने मरना पड़ेगा। वहां जरा समझे, यीशु को जलाल देने के लिए कुछ जगहों पर हमें क्या होना पड़ता है? झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है। आप कहेंगे मेरा की कसूर, व्हाट इज माय फॉल्ट, मुझे क्यों मार रहा है? जलाल अपने आप को देना, मार मुझे। जरा सोचिए ये क्या बात मैं कर रहा हूं। आपको दुखों में से गुजरना पड़े, हो सकता है, लेकिन अगर वो दुख यीशु के जलाल का बायस है, अगर तेरी मौत यीशु के जलाल का बायस है, तो फिर तुझे गुजरना है, क्योंकि तेरी जिंदगी जमीन पर सिर्फ यीशु मसीह को ही जलाल देने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। दुखों में जलाल, मेरी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है।
میری زندگی کا مقصد روٹی چھوٹی کھانا نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد یہ بنانا کچھ نہیں ہے. بن جائے مل جائے ٹھیک ہے, گاڑی مل جائے ٹھیک ہے, گھر مل جائے ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کو ہم نے پہلی ترجیح جو ہے میری زندگی کی کیا ہونی چاہیے کہ میری زندگی سے بس تمہارے بدن سے خداوند کے نام کو کیا ملے, جلال ملے. ہاللیلویا. بس کھاؤ یا پیو جو کچھ بھی کرو اس کے جلال کے لیے کرو. ہاللیلویا ہاللیلویا. لیکن پھر آگے جلال کیسے دیتا, تھوڑا تھوڑا ذرا پڑھتے ہیں آگے. اچھا 5ویں آیت اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے, اچھا بار بار کہا جا رہا ہے تو محبت کرتا تو محبت کو یہ نظر نہیں آتی. اجے کام کی ہو رہا ہے, سارا الٹ ہو رہا ہے. اچھا 6 آیت میں کیا لکھا, اور جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن ہے. چنگا یسوع بندہ مرن گیا تو یسوع مرنے سے 2 دن اور سٹے کر رہے ہیں. کیونکہ یسوع اگر اس کی زندگی میں اس کی بیماری کی حالت میں چلا جاتا تو مرتا ہی نہ. یسوع کبھی کبھی پورا کام کر رہا ہوتا ہے, یسوع کو پتا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے. Delays are not denials. دیری کو, تاخیر کو انکار نہ سمجھیں. اگر ڈیلے ہو رہا ہے نا کوئی گل ہاللیلویا, ڈیلے تو دوسرا لفظ آپ نے ایکسلریشن بھی یاد رکھنا ہے. ایکسپیڈائٹ جو بیٹے ٹھیک بولا, کیا بڑا مسئلہ ہے کانورٹیشن. آپ نے آج لفظ کا بولا تھا وہ میں کاٹا سے بہ کے پڑھا بھائی. میں تو یہ دفعہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں رابی سینٹر میں راؤنڈ لیف کا رابی سینٹر جا رہا انہوں نے پڑھ دیا, میں اجے تک پڑھ دیتا. دیر ہو گئی کیونکہ گھر والی کی دکھی دیر ہو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں, سکون رہتا ہے. میں 2-3 باتیں خداوند نے کھولی ہیں رات کو, میں آپ سے شیئر کروں گا. اس ڈیری میں آپ کا بیہیویئر کیا ہے. کڑی مڑی نہیں کرنا, behind the curtains کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. ہاللیلویا. اب یسوع جو کر رہا ہے نا اس میں حکمت ہے. 2 دن ہو رہا, پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا آؤ پھر یہودیا کو چلیں. 11ویں آیت, اس نے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. پر شاگردوں نے اس سے کہا اے خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا. یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا. تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ. وہاں ہوتا تو لازر نے مرنا ہی نہیں تھا. خداوند نے کہا ہونے دو, جان دو, جڑا آخری دشمن ہے نا انہوں نے اٹیک کاری لے گئے. اپنی قدرت اس نے دکھانی تھی نا. ہاللیلویا. اسے بتانا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. 17ویں آیت, بس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے. بیتنیہ, اب یہ 4 دنوں کی بھی سٹوری ہے, میں چھوڑ رہا ہوں. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا. بہت سے یہودی مرتھا
और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, ए खुदावन आंधे गिला, डाल देता ना, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई, अच्छा उसको भी पता था कि अगर ये यहाँ पर होता तो मेरे भाई ने मरना ही नहीं था। उसको पता था कि ये है कौन। आपको पता है कि आप जिसकी वर्शिप करते हैं वो है कौन? आपको पता होना चाहिए वो है कौन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा आगे फिर, और अब भी मैं जानती हूं, डिले हो गया, लाजर मर गया, नो प्रॉब्लम। क्या कह रही है? अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। मर्ता ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा हाँ ऐ खुदा, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। हालेलुया। ये इकरार बहुत जरूरी होते हैं। हालेलुया। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था, देखिए पहुंचना आपने कहां पर है? कहां पर पहुंची मरियम? जहां यीशु था। मफलूज को उस जगह पर लटका दिया जहां पर यीशु था। हालेलुया। वहां पर पहुंचने की कोशिश करें जहां पर यीशु है। हालेलुया। और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा खुदावंद चल कर देख ले। 35वें बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी आयत, यीशु के आंसू बहने लगे। जीसस वेप्ट। बस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि यह आदमी मरता ना था? आगे ना गल्ला करने वाले आए बड़ा यीशु यीशु कहते हो, बड़े खाने खवांदे सोने है जी, बड़ियां खिदमतां तुहाडे ला के रहिंदा सी है। बस इदा ही यीशु सी, इतना ना कर सका। होंदे ही इंजदे ने। हम डायरेक्ट यीशु को नहीं करते लेकिन इंज नहीं कर देंगे। आपने जो खिदमत कर दी है ना, जो खाने खिला दिए अजर की तोको भी यीशु से रखी। मैं सही गल कह रहा है, पादरी भी इंसान है, पादरी कोई तोको ना करो। आप हदिया जो देते हैं ना, अगर तो आप इस सोच देते हैं मैं पादरी समझ में देता हूँ तो फिर रहने दो। अगर आप कहते हैं दाई की मैं पादरी समझ में देता हूँ रहने दो। लेकिन अगर आपकी सोच ये हो कि ना मैं ये दाई की हदिये नजराने यीशु को देता हूँ तो फिर उसका अजर भी यीशु ही आपको देगा। अगर मुझे दे रहे हैं तो फिर मेरे को तो कख नहीं। सीधी सी बात है। मैं तो आप होते दर सवाली है। अच्छा आगे क्या लिखा है? यीशु फिर अपने दिन में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, जो काम तेरे करने वाला है वो तूने करना है। मुर्दा तू जिंदा नहीं कर सकता, मुर्दा मैं जिंदा करूंगा। लेकिन जो काम तेरी दस्तरस में है, तेरी पहुंच में है, तेरी रसाई में है, जितना तू कर सकता है, यू हैव टू डू। मैं मौजा नहीं कर सकता लेकिन मैं दुआ तो कर सकता। मैं खुदा के घर तो आ सकता हूँ। कभी कभी पता है त्योहार को हमने खुद भी अपने लिए रुकावटें खड़ी की होती है। उन औरतों की मैं कहता हूँ क्या जबरदस्त जज्बा था कि उनको पता है जिससे हम मिलने जा रही हैं वो डेड है। उनको तो नहीं पता था कि वो जिंदा हो चुका है। फिर भी मसाला मसूला तैयार करके, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पत्थर को कौन लुढ़काएगा? 1.25 टन पत्थर को
कौन लुढ़काएगा। लेकिन जाना जरूर है, चाहे यीशु मुर्दा ही है, अभी कब्र में है, मिलना जरूर है। ये भी अकीदत थी। आप कदम बढ़ाना शुरू करें, मैं आपको सही कह रहा हूं। आप ऐसे कदम बढ़ाएंगे, पत्थर रखना शुरू करें। हालेलुया। कहते ना नीयत, ट्रकों के पीछे कभी कभी बड़ी चंगी गल लिखी होगी, नीयत साफ मंजिल आसान। खुदावन के नजदीक जाओगे तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जाओ तो सही। तो रोशनी के करीब जाएंगे ना, आप भी मुनव्वर होंगे। फूल के करीब जाएंगे, आपके अंदर भी फूल की खुशबू आ जाएगी। हालेलुया। जिस माहौल में रहेंगे ना, अच्छा अगर बंदा एक पार्टी दे किसी साथ बैठा जिदे इर्द-गिर्द 7-8 बजे सिगरेट पी रहे थे, वो आप नहीं पी रहा, लेकिन जो घर आया करे तो कपड़े की स्मेल आ रही होगी सिगरेट की, भी वहां पे बैठ के पी के आए। अच्छा वो नहीं पी के आया, पर क्यों कपड़े तो की आ रही है, क्यों कमर बाजन ठीक है ना। कितने साल सिगरेट पीती है? 35 साल। लेकिन छठी है तो क्या छठी है? एक दामी छोड़ी। ये मेरे वालिद साहब की भी थी। सिगरेट छोड़ी तो एक दामी छोड़ी, उसके बाद भी हाथ नहीं लगाया। सैनमा भी छोड़ा तो एक दामी छोड़ा, उसके बाद भी। तो ये जो कहते हैं नहीं वो छड़ के ना फिर तीसरे दिन पी रहे होते हैं। भाई आप क्यों पी रहे? वो तीनों गैस्ट्रिक भाई रहमत क्या है दसा, एक बंदे ने तौबा की थी ना, तो कहते तो को पूछा भाई हाँ भाई तौबा करने के बाद की हालात है, तो कहना पाजी सब कुछ ना पूछो, मैं तो तौबा करके अनजाने ढूंढा नु छेड़ मुश्किलात। यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे कबूल करेगा तो मुश्किल नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, तंदुरुस्ती नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। आएगा सब कुछ, लेकिन मैं तेरे लिए समुद्रों को 2 टुकड़े करता रहूंगा, जरूर की दीवारों को गिराता रहूंगा और तेरे लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा। स्मिथ विगलसवर्थ, मुझे बात याद आ गई। स्मिथ विगलसवर्थ कहता है मैंने ख्वाब में देखा, कितने मुर्दे जिंदा किए थे? 8 मुर्दे जिंदा किए, और उसने अपनी बीवी को 3 दफा जिंदा किया। एक बारी बीवी मरी, आजा भाई, दूसरी बारी मरी फिर जिंदा करता, तीसरी बारी मिली फिर जिंदा कर देता, चौथी बारी मरी ना, खुदा ने कहा मेरे को रहने के पास तो ठीक बना दी। स्मिथ विगलसवर्थ कहता है कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं एक दरिया में जा रहा हूं और उसके सामने में दरिया में एक चट्टान का टुकड़ा सा आ गया। तो कहता मैं ख्वाब में पता क्या कह रहा हूं खुदा को, बड़ी खास बात है। कहता मैं ख्वाब में कह रहा हूं मैं आ रहा कहती बैग के चट्टान उठा दे। खुदा ने कहना चट्टान नहीं उठाऊंगा, पानी का लेवल ऊपर कर दूंगा, चट्टान नीचे रहेगी तो ऊपर से। खुदा कैसे काम करता है, हालेलुया। पॉइंट समझ गए? कभी कभी कहते रहेगी चट्टान, रुकावट रहेगी, लेकिन मैं तेरा लेवल ऊपर कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये है यीशु। आमीन। तो क्या लिखा है जी? पत्थर को किसने डाला जी? तो मैंने डाला। मैं लाजर यीशु की कब्र की नहीं गल कर रहा, मैं लाजर की कब्र की गल कर रहा। उस मरीज की बहन मरता ने उससे कहा ऐ खुदावन उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उससे 4 दिन हो गए। कितना अरसा हो गया? 4 दिन हो गया। एक तो होता है ना बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं केस खराब हो गया, बस अब ये मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर तो डेथ हो चुकी है और हुए भी कितने दिन हो गए? 4 दिन। और अब इसमें क्या आना शुरू हो गया? बदबू। अब नहीं, अब मुआवजा नहीं हो सकता, टाइम गुजर रहा है, बदबू
बदबू आ रही है। कोई एक दिन होता शायद हो जाता, दूसरा दिन होता शायद हो जाता, तीसरा दिन, ये तो चौथा दिन। फकीह फरीसियों की जो थियोलॉजी थी, जो बातें थी कि 3 दिन तक रूह यहाँ भटकती है, यीशु मसीह हकीकत में दरअसल उसको खत्म कर रहा था, उस नजरिए को। वो कहते 3 दिन में भटक गया, यीशु तीसरे दिन निंदा कर देते, कहते फाड़ के रूप आ गई थी, क्योंकि यीशु मसीह को क्या कहते थे, बाज़बूल की मदद से ये बदबूओं को निकालता है, इसके पास इख्तियार है, ये बदबूओं का मालिक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे भी बहुत से मसीह बहन भाइयों में पाया जाता है। ए आंड गुआंढ रहने वाले कई लोगों, सारे का नहीं मैं गल कर, वो कहते हैं जी परसों फूफी मरी सी, खा भी चाहिए तो प्याज मंगनी सी, मैं कहा टमाटर भी मांग रहे। हमारे यहाँ पता क्या गलत कॉन्सेप्ट है, मैं क्लियर करता हूँ। जे बंदा जल के मरे ना, उसकी रूह यहाँ पर भटकती है। जे बंदा एक्सीडेंट से मरे, उसकी रूह यहाँ पर भटकती है। जे बंदा फांसी ले ले, उसकी रूह यहाँ पर भटकती है। अगर बंदा कत्ल हो जाए, उसकी रूह यहाँ पर भटकती है। ओ आप हिंदू नहीं है, रूहें नहीं भटकती, ये रूहें वही भटकती हैं जो नापाक रूहें, बदरूहें हैं। गुनहगार की रूह सीधी थले, ईमानदार की रूह सीधी उते, डायरेक्ट फ्लाइट। जैसे 12 दरवाजे हैं ना नए यरूशलेम के, ऐसे ही स्कॉलर्स ये कहते हैं 12 ही जहन्नम के भी दरवाजे हैं। और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था यूना के बारे में भी, पेरिस्टोन को। वो कहता वो पाताल की जब बात करता ना, तो उसकी रूह जा चुकी थी उस वक्त दाल में वहां नीचे। और ये जो दरवाजे हैं, ये सारे जो ना समुंदर हैं, इनके अंदर ये दरवाजे हैं जहन्नम के दरवाजों की बात है। और उसमें पेरिस्टोन ये कहता है, उसने ना एक जो दरवाजा जहन्नम का पता कहां पे, उसकी बात कर रहा हूं, तो मैं उनकी गल कर रहा, ये उसकी मैं बता रहा हूं। उसने ये बात की, इस बात से मैं मुत्फी को 12 अगर फिरदौस के दरवाजे तो 12 जहन्नम के भी है। जिथे जिथे गुनहगार मरदा ना, उतो अपने ही चला जाता है। अच्छा, उसकी एक रिसर्च है, उसने ये बताया है, मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूं। वो कहना एक जरा जन्नत का दरवाजा पता कितने, कराची में सुन, आप इससे मुत्फिक हो या ना हो, लेकिन मैं उसकी बात बता। जहन्नम के दरवाजे पर उसे साबित किया रेफरेंस से, रामी ने उसे साबित किया उन चीजों को, वो सारी बातें यूना की बात है, पाताल की बात है, फिर उसे साबित किया और गौर से। फिर एक और वो बरमूदा का एंगल है, वो कितने भी वो कड़ी जगह के अंदर, वो भी हो गया, वो ज्यादा तो पता नहीं चलता, बंदा तो पता नहीं चलता। ये पता नहीं बात कहां से होगी, लेकिन ये बात बता रहा हूं, लेकिन मैं ये उसकी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो बात कहां पर आ गई है जी? 40वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हालेलुया। दुनिया का ईमान क्या है? देखो और ईमान लाओ। बाइबल का ईमान क्या है? ईमान लाओ और देखो। हालेलुया। बिलीव एंड सी। दुनिया कहती है सी एंड बिलीव, बाइबल क्या कहती है? बिलीव एंड सी। ईमान लाओ और देखो। जब तक हम कोई चीज देख नहीं लेते, घर लेना हो देख नहीं लेते, गाड़ी लेनी हो देख नहीं लेते, कोई चीज लेनी हो देख नहीं लेते, उस वक्त तक हम उसको नहीं लेते। लेकिन बाइबल का ईमान क्या है? कि पहले आपने ईमान लाना है, फिर आपने देखना है। हालेलुया। ईमान की आंखों से देखना शुरू कर दे। हालेलुया कि खुदा आपके लिए कुछ कर रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदा यीशु से एक खास राज मुझे और आपको सिखा रहे हैं। पास्टर ने उस पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी।
शुक्रगुजारी में कुव्वत है, शुक्रगुजारी में कुदरत है, शुक्रगुजारी में ताकत है, शुक्रगुजारी हालात को तब्दील कर देती है। और यीशु मसीह कब्र के मुंह पर खड़ा होकर, उसके सामने डेड बॉडी है, बदबू आ रही है, 4 दिन का मुर्दा है, और इस हालत में कौन शुक्रगुजारी करता है? लेकिन यीशु मसीह ने बताया है, हालात जैसे भी हो, वाकया जैसे भी हो, कब्र के धाने पर खड़ा होकर, कब्र के मुंह पर खड़ा होकर, उन हालात तेरे अंदर जो भी बीमारी है, अपनी बीमारी की हालत में खड़ा होकर तूने क्या करना है? तूने शुक्र करना है, और शुक्रगुजारी तेरे लिए मौजे को लेकर आएगी, तेरे लिए बरकत को लेकर आएगी, तेरे लिए शिफा को लेकर आएगी। लानत को बरकत में, बीमारी को शिफा में तब्दील कर देगी, मौत को जिंदगी में तब्दील कर देगी। नहीं हो सकता, शुक्रगुजारी कर, मौजा होगा, तेरा लाजर बाहर आएगा। हालेलुया। तेरी बीमारी, तेरे प्रॉब्लम, तेरे मसले का नाम लाजर है। और मैं रात को, खुदा मुझे गर्दिश करा रहा था, खुदा कह रहा था एक लाजर नूं फरिश्ते आलमे रवाज लैके जांदे ने, ते एक लाजर नूं यीशु दे कहण ते आलमे रवाज चों फरिश्ते बाहर लैके आंदे ने। लाजर का मतलब नोट कर ले, लाजर का मतलब है वो जिसकी मदद खुदा करे। फिर इसका मतलब है वाकफियत, है जी, वाकफियत वो पीआर कहते नहीं, है जी, ऐ चीज़ां मेरी बड़ी वाकफियत। तेरी सारी दुनिया ना वाकफियत हो सकती है, क्या तेरी वाकफियत यीशु नाल भी है? हालेलुया। लाजर निकलेगा। और आज मुझे खुदा ने बताया है, मैं सही बात कर रहा हूं, आज हमने ये देखना और ये लेना सीरियल मौजा। एक होता है मौजा हो गया है, पर कभी कभी ना वो अधूरे मौजे होते हैं। अब हमने कौन से मौजे लेने हैं? सीरियल मौजे, जिसको मैं देखूं। आज आपने वो इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्या जी? टेंजिबल में है, जिसको छुआ जा सके। हाँ, और मैं तुम दसन लगा जे 5 तो 10 मिनट है तो बह दो है। ओ वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। तुसी लोग खामोशी हवाओं हवाएं, हालेलुया, शुक्र है तुसी ये। अच्छा, मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर मैं इन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर निकल आ। यहां पर एक खास बात आपको गोश उतार करना चाहूं। उस कब्रिस्तान में शालोम बेटे बड़े मुर्दे थे। अगर यीशु कहता ना मुर्दे कब्र में से निकल आते, कब्रिस्तान खाली हो जाता। इसका मतलब है स्पेसिफिक, टारगेट, फोकस्ड। जेड़ा मसला ना उन्होंने एड्रेस करो। और उसे जाके मैं उसे आना नहीं यीशु ने, मैं कहना सी मेरी बुद्धि ने भी जिंदा कर दी, नाल भाई कूब ने भी जिंदा कर दी, नाल भाई परवेज ने भी जिंदा कर दी, मेरे दादे ने भी जिंदा कर दिया। हो सकता था ना, वैसे कई कहते होंगे दादे ने तो कर देता और साढ़े भी कर दे, कर सकता था ना, लेकिन नहीं। खास ये आपको मैं गुरु की बात बता रहा हूं। कभी कभी ना हम बड़े कंफ्यूज होते हैं दुआ में। एक आदम पादरी इसके सोच चर्च में गया, एक आदम पादरी इसके सोच से क्या
भाई ने खाने से दुआ कर, उन्हें क्या खुदा क्या हुआ जो मैंने 10,000 ने वो तो ये के साथ खुदा इसके सोच है कि हमारे खाने की दुआ कर। कुछ लोग दुआ करते हैं ना, वो आगे पीछे बड़ा चले जाते हैं। खुदा जितने अस्पतालों में मरीज है सारे खड़े, कभी पारी पड़ा सारे मरीज ठीक हो गए। अच्छा एक और दुआ हम दुआ करने वाले हम कहते हैं खुदा जितने भी आज सफर कर रहे हैं सबके साथ रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, पॉइंट समझे। पता मूसा क्या कर रहा था? कुलजम के सामने खड़ा होकर दुआ कर रहा था। खुदा ने कहा दुआ बंद कर, हाथ बढ़ा, लाठी को बढ़ा, और दुआ करना बेला नहीं है, अब एक्ट कर। वहां जी करनी पीछे करनी प्राइवेट रूम चैम्बर में कोठरी में होया ना काम, एक्सेलरेशन बाजी। हालेलुया। कैसा एक्सेलरेशन? क्यों बेटे? दुनिया नहीं सोच सकती ऐसी एक्सेलरेशन हुई है। कुछ हो रहा है आपके अंदर, पता कुछ खुदा आपको सिखा रहा है। मैं सही बात तो मैं गुलाम फरमाना में देना और उसके बाद ऐसा सुन रहा था वो क्या आपसे बोलना चाहता है। कुछ चीजों में आपने ईमान का अमली इज़हार भी करना है। और बहुत से लोग मुझे गवाहियां देते हैं अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते, ये बात मैंने इसको पिक कर ली और मैंने एक्ट किया तो मेरा काम हो गया। और जो सादगी से कबूल कर देते हैं वो पीछे मद्दी बबली बैठे सादगी से कबूल कर देते हैं ना, काम होना शुरू हो जाता है सादगी से। खादम या वहां पे जो अफ्रीका के वो जो नंगे पंगे रहते थे उनको जुबान नहीं आती थी खादमों को, जो वो लोग होते हैं रेड इंडियन, उन्हें जाके को महीना उत्थे रहा, उन्हें जाके समझा दिता खुदा कौन है, उन्हें यीशु के बारे में दस दिता। वो तो जुबान आ करके तो ईमान की बात समझा दी उसको। वो कश्ती में खादम आ रहे हैं, अद्धा दरिया टप गए थे, तो बंदा जी सारी गल्लां सिखाइया ने पता क्या है, उन्होंने देखो एक बंदा नस्या आ रहा है तो दरियावां के उत्ते दौड़ता आ रहा है। उन्होंने कहा कौन है? उनके कौन आ गई? उनको ऐलान है कि वो एक शख्स था रेड इंडियन जिसको कलाम बताया था और वो पानियों पर चलता दौड़ता हुआ। वहां पर आ रहा है कि ऐसे तो चले नहीं, लेकिन उसने कलाम को कितनी सादगी से कबूल कर दिया और वो पानियों पर दौड़ता हुआ। हालेलुया। ये सादगी से कलाम को कबूल करना। उसमें आपको ये होता है कि लोग कहेंगे यार है ये कुछ होता है। फिर यहाँ पर क्या बुरा है? यहाँ पर आसमानी दौर खत्म कर रहा हूं। लाजर निकल आया कि नहीं निकल आया? बताने लाजर निकल आया, मौजा हो गया, हो गया। वो बताएं लाजर को कहेंगे नाम लेके, अपने मसले को कहेंगे नाम लेके, आपने फिर ऐसे करना, टारगेटेड प्रेयर होनी चाहिए। ये काम, ये मेरा लाजर है, ये जिंदा हो। फिर दूसरे मुर्दे को भी छोड़ दें। लाजर बाहर आ गया, मौजा हो गया, लेकिन मैंने कहा कि हमने सरीर मौजा देखना, मौजे को देखना है, क्लियर कट मौजा देखना है। आए जरा देखें, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए मौजा ते हो गया ते हाथ ते पैर की ने जे
موعظہ تو ہو گیا پر ہن تے لازر نو کہ چل بھی لازر تے لازر کی کرے گا ہیں؟ کیونکہ کیا ہے جی ہاتھ اور پاؤں کیا ہے بندھے ہوئے ہیں. موعظہ ہو گیا اور آگے کیا لکھا ہے اور چہرہ رومال سے موعظہ ہو گیا پر اجے موعظہ کفن دے اندر ہی ابھی نظر نہیں آیا لازر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موعظہ کر تو مکمل کر اور یسوع نے کہا اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دو اس کے رومال کو اتار دو تاکہ دنیا صریحاً دیکھے کہ زندہ کون ہوا ہے موعظہ کون سا ہوا ہے. ہاللیلویہ. گل سمجھ آ گئی. خداوند موعظہ شاید اینڈی کوئی ہوندے رہے نے پاسٹ میں لیکن اب پھر بھائی ہم نے کیسا موعظہ دیکھنا ہے ہم نے سریعت دیکھنا ہے. ہم نے اس موعظے کا چہرہ دیکھنا ہے. ہم نے اس موعظے کو چھو کے دیکھنا ہے. اس لازر کو اپنے ہاتھوں سے اس کو کہنا ہے ہیلو لازر. اسے ہاتھ ملانا ہے اپنے موعظے سے ہاتھ ملانا ہے. ہاللیلویہ. ہمیں ایسا موعظہ نہیں چاہیے یسوع جو کفن میں لکھا ہو ہاتھ پاؤں باندھے ہو پتہ ہی نہیں چلے. ہمیں ایسا چاہیے جو سریعت جڑا سامنے ترے پھرے تے لوکی کہن ہاں اے موعظہ جی واہ 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 اے کیتا کی نے رے اے یسوع نے کیتا. ہاللیلویہ. پانچ روٹیاں دو مچھلیاں. خدا پتہ آپ کا ٹائم بھی بتانا چاہ رہا ہے. ڈاکٹر صحیح بات کر رہے ہیں. 5000 لوگوں چھوڑ دے بچے عورتیں کتنی چھوڑ دے 5000 لکھا نا مرد. ٹھیک ہے اب 5000 کے لیے آپ ذرا دیکھیں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں. یسوع نے کیا کیا شکر گزاری موعظے لے کر آتی ہے اور برکت کو بڑھا دیتی ہے. میں رات کو کے گھر میں تھا تو شکر گزاری کی میٹنگ میں ان کو بتا رہا تھا. میں چرچ آف پاکستان کے ممبر ان کو میں بتا رہا تھا ویسے بات آ گئی. میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہم پتہ کہ اپنی ٹائٹ روک دیتے ہیں اور جب آپ 100 میں سے 10 نکال دیتے ہیں نا تو 90 پہ برکت آ جاتی. لیکن اب 10 جو خدا کو دینے تو روک دیتے ہیں نا تو پھر 100 دے 100 کی تھلے آ جاتا ہے پھر لعنت کی رک جائے. پھر سارا مہینہ کہتے ہیں پوری آپ کی انکم پتہ جتنی بھی ہے آپ کی ایجوکیشن جتنی بھی ہے وہ سب کچھ یسوع کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ کے دیکھیں اور 5 روٹیوں کو یسوع کے ہاتھ. آپ زندگی کو دیکھ کے دیکھیں یسوع کے ہاتھ میں برکت آتی کہ نہیں آتی کثرت آتی کہ نہیں. ان پڑھ جاہل تھے شاگرد ایسے ہی سمجھ ٹھیک ہے انہوں نے بارے یہ ان پڑھ ہیں ناواقف ہیں لیکن اگلی ڈگری کیڑی لکھی ہے آکسفورڈ کی ڈگری کی لکھی تھی یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. یہ ڈگری سب سے بڑی ہے یسوع کے ساتھ رہنا. یسوع کے قدم دنیا کی بہترین یونیورسٹی. ہاللیلویہ. اب مجھے بتائیں اتنے لوگوں کو روٹی کھلانی ہے آپ نے اچھا ان لوگوں اتنے لوگوں کے لیے کوئی ہے بھی نہیں. اب میں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں وہ ایکسلریشن کی طرف کیسے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا بتائیں اب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جب 5000 لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو لائیں آٹا یا پیچھے اور چلے جاؤ. آپ اتنے لوگوں کے لیے بیج بوئیں پھر فصل اگائیں پھر اس کو کاٹیں پھر اس کا آٹا بنائیں ہاں جی آٹا بنائیں گوندیں پھر اس کی روٹیاں لگائیں. کتنا ٹائم لگے گا. اگر آپ کے پاس آٹا بھی چلے ہیں اس کو گوندنے میں اور 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے میں کتنا آٹا کتنا ٹائم لگے گا کتنا ٹائم لگے گا. یہ کانائی گلیل والا بھی واقعہ ہے.
मैं कहां से आएगी, अंगूर लिए जाए, कुचले जाए, प्रोसेस है, टाइम टेकन है ये। लेकिन यीशु क्या करता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ ਪੂਰਾ ਨੂੰ, ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਢੂੰਡੋਗੇ? ਆਟਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁੰਨੇਗਾ? ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। टाइम मेरे इख्तियार में है। हालेलुया। ऐसा समझो लेट हो गया, कुछ भी लेट, तेरा खुदा लेट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक्सेलरेशन। ओ एकदम रोटियां, शर्त, जो कुछ भी है वह यीशु का अच्छा काम है आपकी जिंदगी को पावन। हालेलुया। रोटियां नहीं, शुक्र कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हाँ ये कैसे होगा? लेकिन शुक्रगुजारी की रोटियां पुत्रस वह की हो गया, उनको याद आ गया 40 साल उन्हें बियाबान में किया। हालेलुया। और यहाँ पर भी वही कर रहा है, वो जो बियाबान में रोटियां बरसा रहा था, यहाँ पर भी वही 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर आज आपने क्या सीखा है? शुक्रगुजारी में ताकत है, कुदरत है। आज का टॉपिक, बस शुक्रगुजारी करो। आपने कभी अपने मसाइल की तरफ नहीं देखना, वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा है। और देखना कितने वाले वो ईमानदार स्टेप भी चुकिया करो और नहीं मरदे। ये उनको मंकी मुंकी बॉक्स आ गया जी, कल गलानो टंगी बॉक्स आ जाएगा है। लेकिन जो नई नौजवान है वो तो अपने स्पीक्स लगाएंगे, मेरा कल ओ मुझे बॉक्स तुम्हें नहीं निकले। इसकी भी वबाएं आएंगी, वबाएं खत्म नहीं होंगी। यीशु ने कहा है वबाएं आएंगी, वैक्सीनेशन निकलती रहेंगी, लेकिन वबाएं आएंगी और आती रहेंगी। यीशु ने कहा ना, मैं नहीं कहती, कलाम में पूरा होना है। लेकिन इन हालात में आपने यीशु पर क्या करना है? ईमान रखना। हालेलुया। और जो काम आपके जिम्मे है वो आपने करना है, अपने काम नहीं हो जो सारे ऐसे करते हैं। जो यीशु का काम है ਤੁਹਾਡੇ इंजील सुनाने का, वो आपने सुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिक्र नहीं करनी, 5 रोटियां 2 मछली। और कभी भी हालात कितने भी हो जाए, तो बस कितने भी हो जाए, कभी भी बोरियां आटे की घर में नहीं रखनी आपने। मैं आपको ईमान की बात बता रहा हूँ। कभी आपने 5 किलो प्याज नहीं लेकर आने, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। 5 किलो टमाटर नहीं लेकर आने। इन वबा के 3 सालों में पूछ ले गवाह है, मैं भाजन 1 पाव टमाटर डेली लिया रहा, किलो प्याज लिया रहा, मुझे कोई आड़ नहीं खाए। ये पादरी तो मुझे पता था रोजाना मेरा खुदा मुझे टमाटर सीखा। आमीन, आमीन।